જય વસાવડાના તમામ વિડીયોનો એક જ ઓફિશિયલ ખજાનો એટલે પ્લેનેટ જેવી યુટ્યુબ ચેનલનો જલસો. તો જલ્દી લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકન પ્રેસ કરી ઓલ સિલેક્ટ કરો જેથી તમે જોઈ શકો અમારા વિડીયો સૌથી પહેલા. जब हम किसी के सामने बात करते हो तब फोकस करते हैं. अगर मैं अकेला सोचता हूं तो कैसे होगा, लेकिन अगर मुझे जयसुख भाई कहते हैं कि आज आपको स्टूडेंट के साथ सामने बात करनी है तो मैं अलर्ट हूं, मैं फोकस हूं. ओके, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप किसी के हेल्प लीजिए, अपने फैमिली मेंबर का या अपने फ्रेंड्स का, और उनको बोलिए कि आप मुझे पूछो और सामने बैठो और चेक करो मैं क्या बोल रही हूं. बोलने की, लिखने की बात नहीं है. ओके, अगर कोई मम्मी है, पापा है, कोई भी कर सकता है. अगर वो होगा तो क्या होगा, हमारा माइंड वहां पे फोकस होगा. चलो हमें आज परफॉर्म करके दिखाना, अब याद करना है. ऐसा तो याद नहीं रहता, लेकिन आज तो 10 लोग देखने वाले हैं तो याद रहेगा. तो ये सिंपल सी 3 टेक्निक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको याद रहेगा. सुभाष भाई को मालूम है, कार्यक्रम में हम साथ थे अभी 2 दिन में, तो मैंने बताया था कि ब्रूस ली जो कराटे का चैंपियन था, तो उसके सामने एक चैलेंज आई थी कि भाई ऐसा कोई आपको ओपोनेंट स्पर्धक आता है कि जिसको 100 डिफरेंट किक्स आती है, तो आप उसका मुकाबला कैसे करो. ब्रूस ली ने जवाब दिया था कि मुझे एक ही किक आती है, मुझे कोई 100 डिफरेंट किक कराटे में नहीं आती, लेकिन जो एक किक मुझे आती है वो एक किक मैंने 10,000 बार प्रैक्टिस करके परफेक्ट की. So my first kick is final kick. मैं पहली किक लगाऊंगा, उसको 100 किक मारने का मौका नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी एक ही किक है, लेकिन 10,000 बार प्रैक्टिस से मैंने परफेक्ट किया. So the key thing is practice more. Okay? Thank you. Good morning, sir. Morning. So my question to you is that during exam time we are just getting some negative thoughts that the questions which will come in exam, I will get it or not, the target which I have set for the exam, I will acquire it or not. So sir, how to overcome this negativity and to be positive and be motivated? Thank you so much. This is a home pitch for you. Actually, see, your question itself has an answer into it. The question was target that I set for the exam, whether it will overcome or not, whether can I achieve that target or not. That's why Indian cricket team prefer to bat first rather than chasing the score. Because while batting first they can score 400, 350 runs. But while chasing the total in a pressure match, they might get collapse. All this top line batting may be collapse within few hours. So that's a basic thing that one has to learn. The target will give you the pressure. That's a key role for the negative thoughts. So be relaxed. See, this is the winter season and mosquitoes are happen to bite us. They will suck blood from us. Okay, and we may kill mosquito because we don't like to have that mosquito bite all the time, alternate. Now, they are insects. They don't have developed brain. It's a very tiny creature. Mosquito, ant, spider, very tiny creature, insects. But the programming from the nature is like that. You should do the effort constantly and forget about the result. You may die among this process, even though you don't stop your effort. An ant can die, spider can die. Okay, but they don't stop their effort. Even though you will remove them like this, they will come again and bite you. So this is a nature's thumb rule that focus on effort and don't focus on result. That was the same thing told in Bhagavad Gita by Krishna. Do your karma well, but don't think about the result because it is not in your hand. Okay, sometimes you have done a wonderful job, you have done a great job, but the person, the examiner, is not prepared to see your paper in a good mood. Then he or she doesn't have a good morning tea at that time. And that's why they are in hurry, they are in rush. They may put 10 mark less into that. So don't worry about the result at first. Focus on effort.
your efforts should be excellent. And if your efforts are excellent, sooner or later there will be a result. Remember that, sooner or later. It is not like that every time when you started it, you will get the result. Recently, that M.M. Kirwani, the musician, has got a Golden Globe Award for the song Natu Natu of Arara. Before that, A.R. Rahman got Oscar for Jai Ho. Okay? Now, both the musicians have composed far better other songs than these two songs. Remember that. A.R. Rahman has got Taal and Rangila and so many great albums. Okay, which are much better, much ahead than this Jaivo song of Slumdog Millionaire. And M.M. Cream or M.M. Kirwani has done Bahubali score, was quite majestic score. There are quite a few Hindi film songs still people are remembering. Jisma and Saya and Criminal and that sort of movies. Jadoo hai, Nasha hai, Madoshiya, Avarapan, Banjarapan, composed by the same fellow. But it doesn't get recognized in any award for that. But he kept doing his own work continuously with same passion and same enthusiasm, and eventually with a lesser known work he got a better known award. So it's a law of karma in a way. That because you have done a good karma in past, eventually even your, I will not say bad karma, but I will say average karma will get rewarded as a great karma. Okay? So you just get relaxed, nothing else. Just be relaxed, have a smile on your face, be positive from within, and like we have to take a bath every day, we have to cut our nails or hair after some time. In good thoughts, in positive spirit thoughts, in motivated thoughts, you have to pour yourself every day. So every day think that, okay, I am going to do it. I am a winner. And yes, I can. I can. If everybody else can, I can also. Okay? Thank you, sir. Anyone else who is right now? Okay. Good morning, sir. Morning. My question for you is that कि मेरे दोस्त कहते रहते हैं कि अगर आप 90% से ऊपर लाओगे तो आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलेगी. तो सर ये जो सोसाइटी ऐसी हो गई है कि हम मार्क्स लाए तो ही हमें इज्जत मिलेगी या फिर क्या हो गया है? शुरू में ऐसा है, ये सोसाइटी ऐसी है कि शुरू में कपड़ों को भी देखती है, गाड़ियों को भी देखती है, बंगले की साइज भी देखती है, आपका मार्क्स भी देखती है. इनिशियल बाद में भूल जाती है. 4 दिन की चांदनी जैसी बात है. ओके, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ऐसी कहावत है. तो ऐसी बात है कि शुरू में सच लगता है सबको, सोसाइटी मार्क देखती है, सोसाइटी आपका लुक देखती है. इनिशियली ओनली आपने ऐसे हीरो या हीरोइन नहीं देखे जो बड़े हैंडसम दिखते हैं, बड़े सुपर कूल दिखते हैं, और 2-3 फिल्मों के बाद लोग उन्हें भूल जाते हैं. लेकिन कोई नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसा या इरफान जैसा जो एवरेज लुक वाला इंसान है या बिलो एवरेज लुक वाला इंसान है, समटाइम्स उनको बिकॉज ऑफ देयर परफॉर्मेंस लंबे समय तक लोग याद रखते हैं. ओके, तो शुरू में तो यही लगता है कि भाई ये हैंडसम है, जिसको हिंदी को बोलते हैं चिकना है. जैसे काफी सारे मॉडल मैंने देखे हीरो के तौर पे आए, 1-2 फिल्में की, गायब हो गए, लोग भूल गए वो क्या थे, कौन थे. लेकिन अमिताभ बच्चन, ओके, उनका ग्रेट हैंडसम लुक तो है नहीं, अब तो सफेद दाढ़ी भी है. तो मैंने तो एक बार बोला था मेरे लेक्चर में कि सक्सेसफुल इज ऑलवेज ब्यूटीफुल. अब सफल हो जाओगे तो आप ब्यूटीफुल ही दिखोगे. सिंपल लॉजिक है. महात्मा गांधी जी नोट के ऊपर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मुंह में दांत नहीं है, सर पे बाल नहीं है, और रणबीर कपूर जैसे तो दिखते नहीं है. लेकिन फिर भी उनका दर्शन तो हमें रोज करना है. जब नोट निकालोगे तो उनका दर्शन हो जाएगा. तो आपकी बात सही है कि सोसाइटी 90% मार्क को देख के उसको वजूद देती है, लेकिन फॉर शॉर्ट टाइम फिर भूल जाएगी. अब मुझे ही पूछिए, मैं तो एजुकेशन में हर साल ऐसे लेक्चर्स देने के लिए कितने स्कूल में जाता हूं, जैसे मेरे को पता है टॉपर्स का लिस्ट आता है, मेरे हाथ से सम्मान होता है, मैं उनको अवार्ड देता हूं. कभी कभार कहीं पे मिल जाते हैं तो याद दिलाते हैं कि आपने 5 साल पहले हमारे स्कूल में आए थे, अवार्ड दिया. मैं तो भूल गया.
मुझे तो नाम याद नहीं, उन्होंने याद दिलाया तो पता चला मैं कहां पे आया था, लियो स्कूल में आए थे। क्या अवार्ड मिला था, मैं टॉपर था, मैंने ये परीक्षा पास की थी, उसका सम्मान था। समझिए, अब मैं तो भूल गया ना, मैंने खुद अवार्ड दिया है, मेरी तस्वीरें उनके साथ, फिर भी भूल गया। क्यों? क्योंकि विदाउट बीइंग ए टॉपर 2 मिनट के लिए मुझे बताया गया कि इनको 95% मिले हैं और वो टॉपर थे, उनके अलावा उन्होंने ऐसा तो कुछ किया नहीं कि मुझे याद रह जाए। लेकिन किसी का वीडियो हम 15 सेकंड का देख लेते हैं इंस्टाग्राम की रील में, उनको तो नहीं भूल पाते। देखिए, जिसको मैंने खुद अवार्ड दिया उसको मैं भूल गया 95% वाले। मैं ऐसा नहीं कहता कि डांस बेटर है या नहीं, मैं ये कहता हूं कि अगर आपने कुछ बेहतर किया है तो आपका रजिस्टर परमानेंट रह जाएगा, इवन तो आपका मार्क्स क्या है कोई नहीं पूछेगा। मुझे कोई नहीं पूछता कि आपकी मार्कशीट क्या है। आपको लेक्चर के पैसे देते हैं तो कोई पहले मार्कशीट भिजवाइए, फिर आपका पुरस्कार का चेक रिलीज करें। ऐसा तो जैसे ऊपर किसी ने नहीं कहा। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को बोलते हैं सर पहले अपनी मार्कशीट दिखाओ 3 साल, फिर हम ऑपरेशन के लिए पैसा जमा करेंगे। डॉक्टर कहेंगे कि बाहर लंबी लाइन है, आप बाहर जाओ, ओके मुझे दूसरे पेशेंट भी देख लेंगे। डॉक्टर तो जाने दो, ड्राइवर को पूछते हैं कभी, रिक्शा में बैठ जाते हैं, टैक्सी में बैठ जाते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, प्लेन में बैठते हैं, बस में बैठते हैं, तो कभी गए बस में बैठते हुए, यहां से जयपुर जा रहे हैं तो देखिए पहले ड्राइवर को उठाओ, ड्राइवर को पूछो आपने कौन सी एग्जाम पास की, कितने मार्क आए थे आपको, सब पेपर के मार्क्स आपको रट के बताइए, और आपने ड्राइविंग की एग्जाम कब दी, कितने किलोमीटर की ड्राइविंग की अभी तक। ऐसा कुछ पूछने के बगैर हम जो 400-500 रुपए की टिकट वो लेकर बैठ जाते। सिंपल लॉजिक है कि इवेंचुअली सोसाइटी विल ट्रस्ट परफॉर्मेंस एंड नॉट मार्क्स। मार्क्स इज एंट्री टिकट, एंट्री टिकट चाहिए कहीं पे अंदर जाने के लिए, लेकिन टिकट का क्या होता है, आप गरबा खेलने के लिए जाओ तो पास का क्या होता है, पास फाड़ दिया जाता है, तो दरवाजे पे फट गया। अब आप कैसा गरबा खेलोगे उसके ऊपर कैमरा रहेगा, पास के ऊपर नहीं रहेगा। क्योंकि गरबा कैसे स्टेप अगर अच्छे करोगे तो नहीं पहचानते वो लोग आगे कुछ आपका नाम क्या है, इतना अच्छा गरबा खेल रहे हो। ओके, तो सोसाइटी महत्व देती है ये ठीक है, लेकिन वो टेम्पररी। लुक्स का महत्व, बैकग्राउंड के महत्व, पैसे का महत्व, गाड़ी का महत्व टेम्पररी। लॉन्ग टर्म महत्व है आप कैसे हो इंसान के तौर, आप में गुण क्या है, आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी क्राइसिस सिचुएशन में सॉल्यूशन कैसे दोगे, जिस सब्जेक्ट में आप काम कर रहे हो उसके मास्टर हो या नहीं। कल ही मुझे हमारे सऊदी भाई वेकरिया बता रहे थे कि यहाँ पे ये भजिया वाला ये है, ये इडली वाला ये है, ये खमण वाला ये है। वो खाने पीने के शौकीन है और खिलाने के भी शौकीन है, हाँ लोचा वाला। तो उन्होंने यही काम किया ना पूरी लाइफ में, खमण बनाया। एक आदमी ने सूरत में यही काम किया, जैसे मठी की खमण, मठी तो गांव का नाम है, ओके, लेकिन ये ब्रांड हो गए गांव का नाम कि यहाँ की खमणी होती है, यही होता है लश्करी के भजिए। ओके, तो लश्करी को ऐसा नाम तो है नहीं कि जो कॉमन हो, हर बार हर जगह पे दिखाई दे। लेकिन क्योंकि पकौड़ा अच्छा चला, भजिया अच्छा बनाया, रताड़ू की पूरी सरस बना ली, तो लोगों ने याद रही है लश्करी भजिया को समझ मुंह तो नहीं थे तो कोई बन गया। सो इवेंचुअली पीपल विल रिमेंबर द थिंग्स दैट यू हैव, not the marks. So don't worry about the marks, worry about becoming a master. Like the tagline of the Three Idiots movie, chase the excellence, success will follow. काबिल बनो, कामयाबी तुम्हारे पीछे पीछे है। यहाँ पे हेलो और गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज हर्ष फ्रॉम सनलाइट स्कूल। मेरा क्वेश्चन ये कि जो मेरे जैसे स्टूडेंट है जो बॉर्डर लाइन पे है, तो वो अपने आप को मोटिवेट कैसे करें कि A1 या मतलब A2 तक एटलीस्ट स्कोर करें। मोटिवेट ऐसे करो कि मुझे सब कुछ आना चाहिए, स्कोर को भूल जाओ। जैसे मैंने मैम को बताया, जो बेटी ने प्रश्न पूछा कि वो टारगेट मेरा जो है यहाँ पे पहुंचने का, अगर वही फोकस रखोगे कि इससे पहुंचने, मैं ऐसा नहीं कहता, मैंने बोला ना ध्येय बनाओ, ध्येय तो होना चाहिए हमारे साथ,
लेकिन सिर्फ ध्येय के बारे में सोचोगे तो सोच गहरी हो जाएगी और फैसले कमजोर हो जाएंगे। याद रखिए, तो ध्येय बनाने के बाद सोचो एफर्ट के बारे में, प्रोसेस के बारे में। ये सुभाष को हिमालय जाते हैं, हिमालय का एक नक्शा है पूरा। ओके, अब मैं नक्शा देख लूं और तस्वीर देख लूं, ये हिमालय का शिखर है, बड़ा सुहाना लग रहा है। शिखर तस्वीरों में तो बड़े सुहाने ही लगते हैं, वहां जाओ तो ठंड लगती है, ऑक्सीजन कम हो जाता है, सांस फूल जाती है, शरीर नीला पड़ जाता है। ओके, इसलिए शिखर के ऊपर कोई रहता नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता थी, ऊंचे पहाड़ों पर पेड़ नहीं लगते। उन्होंने तो सेलिब्रिटी के ऊपर लिखी थी, ऊंचे पहाड़ों पर पेड़ नहीं लगते, नीचे पहाड़ों पर पेड़ दिखते हैं, हिमालय के ऊपर पेड़ नहीं दिखते, चोटी पर सिर्फ बर्फ होती। ओके, तो देखना हिमालय को एक बात है। फिर क्या करना चाहिए, जिसका नाम है अंग्रेजी में रोड मैप, नक्शा। कहीं देखने से तो वहां पहुंच नहीं जाऊंगा ना। जैसे सपोज किसी ने पूछा कभी कहां घूमने जाना है, तो मैंने बता दिया स्विट्जरलैंड। बोलना तो आसान है, स्विट्जरलैंड घूमने जाना है। तो स्विट्जरलैंड घूमने के लिए ऐसा है कि मैं अपने घर से बाहर निकलूं और अपने ड्राइवर को बोलूं, चलो स्विट्जरलैंड में जाओ, आज शाम स्विट्जरलैंड में खाना खाना है। किसी भी, चाहे आप करोड़पति हो, अरबपति हो, चाहे आप मिनिस्टर हो, कुछ भी हो, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पासपोर्ट कहां, फिर वीजा कहां, वीजा नहीं मिला एप्लीकेशन करो, एप्लीकेशन करो, उसके साथ अपने फॉर्म जोड़ो, अपनी पूरी जो डॉक्यूमेंट्स है वो उसके साथ अटैच करो। वो अटैच करने के बाद वेट करो पासपोर्ट वापस आने की, फिर फ्लाइट का टाइम चेक करो, कौन सी एयरलाइंस कब जाती है वो चेक करो, उसकी टिकट बुक करो, फिर बैग में कितना वजन ले जा सकते हैं वो एयरलाइन का रूल चेक करो, और बैग अपनी इस हिसाब से करो वहां पे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। फिर एयरपोर्ट पे पहुंचने का टाइम चेक करो कि 2 घंटे पहले पहुंचना है, 3 घंटे पहले पहुंचना है, सिक्योरिटी चेक करवाना है, बैग में ये चीज जैसे कई चीज सीजर नहीं रखनी है, वो सिक्योरिटी वाले निकाल के फेंक देंगे। कितनी प्रोसेस है आप देखिए। बोलना तो कितना आसान है, मैं स्विट्जरलैंड जाना चाहता हूं, अभी स्विट्जरलैंड तो आया ही नहीं, अभी तो आप अपने घर पे ही घूम रहे हैं। ओके, सो एनीथिंग में एक उदाहरण से दिया कि रोड मैप चाहिए। हम रोड मैप नहीं सोचते, सिर्फ टारगेट सोचते। सपना है, क्षमता है या नहीं चेक नहीं करते, नक्शा है या नहीं चेक नहीं करते। सिर्फ सपने देखने से तो अब्दुल कलाम साहब का फेमस कोट है, सपने वो नहीं जो रात को सोते वक्त आते हैं, सपने तो वो होते हैं जो दिन को चैन की नींद सोने के लिए। तो सपना होने के बाद A1 A2 का अब रोडमैप पे फोकस, नहीं कि सपने पे, अपने आप आ जाएगा। A1 A2 का शिखर आपको मिल जाएगा, वहां पे फोटो आपकी लग जाएगी। कब? नक्शे पे चलोगे तब, सही प्रिपरेशन करोगे तब। सो फोकस ऑन प्रिपरेशन, ऑटोमेटिकली यू विल गेट योर लक्ष्य, योर टारगेट। ओके, थैंक यू। यहाँ पे आगे के बाद ये ले लीजिए। ओके, यहाँ आप पीछे भी है 2-3 लोग। चलो मैं थोड़ा शॉर्ट आंसर करता हूँ तो ज्यादा लोगों को गुड समझ मॉर्निंग सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं मतलब मेरा रिवीजन करना बाकी रहता है और मुझे ये भी कंफ्यूजन होती है कि मैं रिवीजन पेपर रिवीजन करूँ या फिर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूँ। मेरा रिवीजन भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, मैं पेपर्स भी सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ। तो आप ऐसा कीजिए ना, 2 विभाग कर दीजिए। इस सुबह में जैसे आप रीडिंग टाइम है तो सुबह में आधा घंटा या 1 घंटा आप रिवीजन करें, और शाम को 1 घंटा या आधा घंटा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। उसमें डिफाइन कर दीजिए कि अभी ये कर रहे हैं, अभी ये मुझे भी ये होता है। मैं आपको बताऊं, मुझे स्पीच भी देनी है और किताबें भी लिखनी है, आर्टिकल भी लिखने हैं, और उसके साथ दोस्तों के फोन भी आते हैं, फिल्में आती है तो फिल्में भी देखनी है, क्रिकेट का अच्छा मैच है तो वो भी देख लेता हूँ, कोई अच्छी किताब आए तो वो पढ़ लेता हूँ। तो वो प्रश्न टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आप दोनों एक साथ करते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, टाइम रहता नहीं, फिर स्कूल भी है, होमवर्क भी है, घर का काम भी है, काफी सारा उसमें मसला रहता है। तो टाइम मैनेजमेंट में एक सिंपल प्रोसेस है, टाइम कैन नॉट बी मैनेज, सेल्फ कैन बी मैनेज। ये याद रखें, टाइम तो टाइम में चला जाएगा, हमसे रुकेगा नहीं। अब मैं पकड़ के रखूं कि भाई मजा आ रहा है, अब 1 घंटा और पकड़ लो, तो वो क्लॉक क्लॉक टिक 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 शुरू है, वो तो 1 आवर अभी चला जाएगा। टाइम कैन नॉट बी मैनेज, सेल्फ कैन बी मैनेज। तो
काफी सारा हमारा वक्त तो ऐसी बातों में चला जाता है जो इतनी अर्जेंट भी नहीं है और इम्पोर्टेंट भी नहीं, लेकिन हमें मजा आता है तो करते रहते हैं। मैसेज चेक करते हैं, देखते हैं, किसी को बात करते हैं, गप्पे लड़ाते हैं, तो ये एक चीज है। दूसरी चीज ये है कि हमारे जो दो रिवीजन और क्वेश्चन पेपर, आपने क्यों ऐसा सोचा कि ये दोनों चीज एक दूसरे से भिन्न है? एक्चुअली आप क्वेश्चन पेपर जब अटेंड करते हैं तो उसमें रिवीजन तो आ ही जाता है। क्वेश्चन कैसे बने? कोई आसमान में से अचानक निकाल के पूछ लेगा। क्वेश्चन कहां से आएंगे? आपके कोर्स में से ही आएंगे ना। तो क्वेश्चन पेपर जब अटेंड करोगे तो उसमें रिवीजन तो हो ही जाएगा अपने क्वेश्चन का, पूरे चैप्टर का नहीं होगा, आएंगे। लेकिन थोड़े बहुत जो स्पेशल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो तो आ ही जाएंगे उसमें। तो ऐसा तो है नहीं कि दोनों चीज ऐसी है कि जो एक दूसरे को काटती है। जैसे आप सब्जी बनाने को बैठ जाओगे तो ऐसा होगा कि वो सब्जी में जो एक घंटा चला गया वो एग्जाम में काम नहीं है। लेकिन क्वेश्चन पेपर अटेंड किया तो उसमें जो आ गया वो तो रिवीजन में आप निकल सकते हो। ये तो क्वेश्चन पेपर में आ गया, ओमिट। ये क्वेश्चन पेपर में आ गया, ओमिट। ओके, तो इतनी गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ कहां पे? हम उसको दो कंपार्टमेंट बना के देखेंगे, वो गड़बड़। वो सिंगल लाइन पे आप देख लो कि क्वेश्चन पेपर अटेंड करो, उसमें जितने आ गए उतने रिवीजन में निकाल दो। ये तो क्वेश्चन पेपर में मैंने अटेंड कर लिया है, अब रिवीजन उसके अलावा और दो टाइम डिफाइन कर। जब मैं करता हूं कि भाई मैं फोन बंद करके लिखने बैठ जाता हूं तो मैं कहता हूं कि नहीं आज लिखने का। अभी मुझे एक लेक्चर के लिए फोन आया तो मैंने कहा कि भाई मैं उस दिन काम नहीं करता। तो उन्होंने कहा कि भाई आप तो फ्री है। तो मैंने कहा फ्री हूं लेकिन अवेलेबल नहीं है। देखिए ये दोनों चीज आप यंग हो समझ लें, फ्री होना और अवेलेबल होना दो एक बात नहीं है। हम फ्री है माने हमारा कुछ काम है, हम घर पे बैठ के मैं लिखना चाहता हूं इसलिए फ्री हूं। अब वो ट्रैवलिंग करूंगा तो वो लिखने का काम नहीं होगा मुझसे। तो मैंने उनको कह दिया कि फ्री तो हूं लेकिन अवेलेबल नहीं है। तो ये हमारे दिमाग में बिठा के रखिए कि जब हम फ्री होते हैं तो हमारी एक्टिविटी के लिए फ्री होते हैं, नहीं कि हर बार किसी और चीज के लिए अवेलेबल होते। तो टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर मेरा डाउट ये है कि कितने सब्जेक्ट्स है जैसे कि साइंस और मैथ्स, उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है तो करता हूँ तो याद रह जाता है उसको कैसे करना है। लेकिन कितने और सब्जेक्ट्स भी जिसमें इंटरेस्ट ही नहीं आता तो याद करता हूँ तो याद भी नहीं रहता, तो इंटरेस्ट कैसे डेवलप करें? ये देखिए दो चीजें इसमें। पहली बात तो है कि हमारी शिक्षा पद्धति में अब तक ऐसा बिठा के रखा गया कि हर चीज में, हर सब्जेक्ट में, हर बात में इंटरेस्ट होना ही चाहिए। गुजराती थाली की तरह हर स्वाद सबको खाया ही लेना चाहिए। एक्चुअल ऐसा नहीं, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ब्रह्मांड के रहस्यों की चिंता करते थे और म्यूजिक भी अच्छा बजाते थे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप अल्बर्ट आइंस्टाइन को बोलो कि आप पॉलिटिक्स में आके प्रेसिडेंट बन जाए। उनको इसमें इंटरेस्ट नहीं। ओके, नरेंद्र मोदी बड़ा अच्छा बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर है, बोलते काफी सारी चीजों के ऊपर उन्होंने काम भी किया है, लेकिन आप उनको कह दो कि ये नया ब्रिज बनाना है, आप तो प्राइम मिनिस्टर हो, आप ही बना। तो ये उनका इंटरेस्ट या एक्सपर्टाइज का टॉपिक नहीं। मैं कल ही बोल रहा था एक कार्यक्रम में कि बाबा रामदेव जी योग के शिविर करते हैं और मोरारी बापू राम कथा करते हैं। दोनों एक दूसरे के मित्र भी हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे का काम नहीं कर सकते। साधु तो दोनों है लेकिन नहीं कर पाए। अब बापू को बस योग शिविर करवाओ नहीं होएगी, बाबा रामदेव जी से राम कथा करवाओ तो नहीं होगी। तो हर एक के इंटरेस्ट एरिया होते हैं ना। हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी विचित्र थी अब तक, अपनी शिक्षा नीति में तो है ऐसे प्रावधान कि अल्पविकल्प कितने की में नहीं, सबको सब पढ़ना ही चाहिए। और फिर एक ऐसा पॉइंट आता है कि जब आप सब पढ़ने के बजाय एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हो तो यू आर नॉट रॉन्ग कि अगर आपको मैथ साइंस में इंटरेस्ट है और दूसरे में नहीं, लेकिन मैथ साइंस में इंटरेस्ट है तो आर्ट में भी होना चाहिए। इसलिए कि ग्रेट साइंटिस्ट जितनी जीवनी मैंने पढ़ी आज तक वो सभी किसी न किसी आर्ट में इंटरेस्टेड थे, क्योंकि आर्ट विल गिव यू इमेजिनेशन, लैंग्वेज विल गिव यू थॉट, और थॉट और इमेजिनेशन के बगैर मैथ्स और साइंस है ही नहीं। इसलिए द फाउंडेशन ऑफ मैथ्स एंड साइंस इज इमेजिनेशन एंड थॉट। अब इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, आपका दूसरा पॉइंट। चलो ये तो बात हो गई कि भाई सिस्टम कैसी है, इंटरेस्ट कैसे बढ़ाए। किसी भी चीज में इंटरेस्ट
इंटरेस्ट और कॉन्फिडेंस बनाने के दो ही तरीके हैं। कॉन्फिडेंस बनाने के लिए प्रैक्टिस मोर। सर कौन? ओके, मुझे चपाती बनाने का बोलो तो मेरी चपाती गोल नहीं होगी। यहाँ पे काफी सारे बैठे हैं, आप तो यंग भी हैं, कुछ लोगों ने अगर प्रैक्टिस की होगी उनकी हो जाएगी, मैं करूंगा तो मेरी क्यों हो जाएगी? शरीर तो मुझसे नहीं होगा क्योंकि मैंने उसमें प्रैक्टिस नहीं की। मैंने बोलने की हमारा लाइव स्ट्रीमिंग चालू है, बोलने लगा लाइव स्ट्रीमिंग का सर में चालू तो है, जिससे सर ने लॉगिन प्रैक्टिस करेલું करो છે उसमें ને कॉन्फिडेंस आए। इंटरेस्ट बढ़ाने के ફોનમાંથી लिए લાઈવ उस સ્ટ્રીમિંગ चीज ચાલતું के હશે, साथ आपको બંધ थोड़ा કરી वक्त बिताना। સરના ફોન કા કનેક્ટ To create interest, you have to generate time for this. वक्त बिताओगे तो इंटरेस्ट होगा, ऐसे ही नहीं होगा। हम तो क्या करते हैं कि भाई ये देखते हैं किताब आई, ठीक है, मजा नहीं आया, एक पन्ना पलट के रख देते हैं। सीरियल आई, रिमोट चालू किया, देखा 3 मिनट देखा, ओके मजा नहीं आया, चैनल चेंज कर देते हैं। ऐसे इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता। ये हाइपर एक्टिविटी, हाइपर ब्रेन, चंचल दिमाग। ओके, ठहर के अगर आप देखोगे सुनोगे तब इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए टाइम चाहिए और कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। ये चीज जितनी बढ़ाओगे ऐसा फायदा मिलेगा। थैंक यू। ગુડ આફ્ટરનૂન સર, મારો સવાલ એ છે કે હવે મેં કોઈ સવાલ પરફેક્ટલી વાંચ્યો હોય અને એક્ઝામમાં પૂછાય તો લખી પણ દઉં, પણ પછી 2-3 દિવસ પછી ફરીથી એ સવાલ પૂછાય તો એના અમુક મુદ્દા ભૂલી જવાય છે, એનું કારણ શું? એનું કારણ એ છે કે આપણે તૈયારી કરી છે એ પરીક્ષા ધ્યાનમાં રાખી કરી છે, માસ્ટરી નથી કરી। જે વસ્તુની માસ્ટરી હોય ભૂલી ન જવાય, બરાબર? જે વસ્તુ આપણે થોડાક સમય માટે શોર્ટ ટર્મ, તમે જે કહ્યું ને એનું સાયન્ટિફિક એક્સપ્લેનેશન છે શોર્ટ ટર્મ મેમરી, લોંગ ટર્મ મેમરી। શોર્ટ ટર્મ મેમરીમાં વસ્તુ યાદ રહી જાય। મારે આજે એક કવિતા બોલવાની છે તો 5 વખત અરીસા સામે ઉભો રહીને ગોખી જાઉં અને કલાક બોલી દઉં, તમે બધા તાળીઓ પાડો। 3 દિવસ પછી તમે મને બોલો, મેં કહ્યું કે બોલો તમે લિયો વખતે આવ્યા હતા જે પોએટ્રી બોલ્યા હતા ની રેકોર્ડ કરવી છે મોબાઈલમાં, બોલો ને પાછી। તો ત્યારે યાદ કઈ રીતે, હવે ભૂલે ગઈ, કારણ કે શોર્ટ ટર્મ મેમરીમાં છે। જે મિનિટે પ્રોગ્રામ પૂરો થયો એટલે આપણા બ્રેઇને તરત એનો, આપણું બ્રેઇન બહુ સ્માર્ટ છે। તમને ખબર નથી કે આપણે બધા સુપર કોમ્પ્યુટર ધરાવીએ છીએ। જો હું બોલું ગુલાબ, કઈ વાત જ નથી ને ગુલાબની, તો તમે પ્રશ્ન જુદો પૂછો, જવાબ મારો જુદો છે। ગુલાબ બોલું ને એ મિનિટે જેટલા બેઠા એના દિમાગમાં ગુલાબની ઇમેજ આવી ગઈ છે। જે ડેટા અગાઉ એન્ટ્રી થઈ છે, ડેટા એન્ટ્રી થઈ ગઈ છે આપણા મગજમાં, ગુલાબ કોને કહેવાય? ડેટા એન્ટ્રી થઈ હોય વિધાઉટ ક્લિક, કોમ્પ્યુટરમાં ક્લિક કરવી પડે, ROS રોઝ ટાઈપ કરવું પડે, આવી ગયું બધાના મગજમાં ગુલાબ, ક્લિક થઈ ગયું, ડિસ્પ્લે થઈ ગયું, ડિસ્પ્લે થઈને પાછું જતું રહ્યું, આપણા મગજે ડિસિઝન લીધું કે અત્યારે ગુલાબની કઈ વાત મહત્વ નથી એટલે બતાવીને જવા દીધું। આવું બ્રેન છે આપણી પાસે। એટલે જે મિનિટે બ્રેનને અહેસાસ થાય કે આ કામ ચલાવવાનું, એ જ મિનિટે બ્રેન ડૂચો વાળી તેનો ઘા કરી દે છે। જે મિનિટે જય વસાવડાએ ક્લાસમાં કવિતા બોલવાની પૂરી કરી, તાળીઓ પડી ગઈ અને જવા માટે બહાર નીકળ્યા, એ મિનિટે બ્રેનને થયું કે આજે આ પૂરું થઈ ગયું, લીઓનું ફંક્શન, આ કવિતાનું કામ પૂરું, જવા દે। આપણું બ્રેન આ પ્રકારનું છે, સમજજો। એટલે એ બ્રેન સાથે કામ લેવું હોય તો એને લોંગ ટર્મ મેમરીમાં તમારે બંને એવો કમાન્ડ દેવો પડે કે આ ખાલી એક્ઝામ પૂરતું નથી, લાઈફ માટે છે। મને કોઈ પણ મિનિટે 10 વર્ષ પછી ભલે એક્ઝામ ફેલ થઈ જાઉં, કદાચ મને માર્ક ન મળે, કદાચ મારી કરિયર બીજી બને, પપ્પાના બિઝનેસમાં ગોઠવાય, ક્રિકેટર થઈ જાય, પણ મને આ સવાલ પૂછશે તો મને આવડશે કારણ કે નહીં તૈયાર। એ એટીટ્યુડથી જો તમે સવાલને ટેકલ કરશો ને તો યાદ રહી જશે। આ બાજુ છે વાંધો નહીં, અહીંયા હતો પણ એ વાંધો નહીં, પાછળ પહેલા લઈ ગયો પછી આપજો। તરત જ લાગી પડે। I think everyone over here have already asked that why, like how to do it, but they don't have asked like why to do it, why we all are studying. Everybody is just like running. Yes, we why you are studying. studying? They Interesting don't question. know the actual purpose behind it. So I would really like to. Now that's a very good question.
Yesterday, myself and Subhash Bhai were talking about reading today and reading tomorrow in Surat. In Sadar Smriti auditorium yesterday night. During that conversation, Subhash Bhai got very beautiful thought. Then we are taking library as a stock of books. That these are cupboards and these are books, piles of books are there in library. We are not thinking that Albert Einstein or Rabindranath Tagore are eager to wait to sit with us. Suppose there is a book of Tagore lying in a cupboard in a library. The Tagore is waiting to sit with us. Einstein is waiting to sit with us. Jay Vasavada is waiting to sit with Chandrakant Bakshi, whatever. So, thinking like this, why we are studying? Why? Because we are getting money. Money is a byproduct. Money is a byproduct of expertise. Expertise will come first. Sachin Tendulkar was a good cricketer first. Automatically money came. Money came to him. And there are people, a couple of people I know who are playing cricket for the money and they are not excellent at it. So money is a byproduct. But eventually we are studying. We are in a school and we want to make a career. Why? Because every individual is unique. Everyone wants to put their own stamp on the life. दूसरों ने क्या किया उसकी कहानी आपने सुन ली. अब आपकी कहानी क्या हो? What is your story? To create your own story, you have to study. That this is my story. Suppose studying in a home school, delivering lectures and writing articles is Jai Vasavada's story. Climbing Himalaya, reading books and sharing thoughts, Subhash Bhatt's story. Doing good work, charity work for the noble work for the Down syndrome children and expressing thought and enjoying life by traveling, Nehal Gadwi's story. We are not great celebrities, but we have created our own small stories out of our study. So every one of you are unique. You can have your own story. Cooking or chef, career of chef may be your story. Maybe being a medical doctor will be your story. Maybe a great artist would be your story. Painter, guitarist would be your story. Good human being would be your story. अच्छे इंसान ही नहीं मिलता आजकल. तब अगर कुछ न बन पाओ तो कोई बात नहीं, अच्छे इंसान भी बन जाओ, लोग आपको याद रखें. सोनू सूद कोई महान एक्टर नहीं है और इतना अभी जवान भी नहीं है, ओके, लेकिन उन्होंने अच्छा काम किया कोरोना के वक्त, लोगों ने याद रखा, राइट? अच्छे इंसान बनना इज ऑल्सो a story. So studying for creating our story and identity. Studying because in our universe we are interconnected. The light we are using, electricity, the microphone we are using, the camera we are using, the single sewing machine cloth that you are using, the spectacles you are using, the watch you are using, the shoes you are using, the scooter you are using, the car you are using, the building construction you are using, everything is created by someone else and beneficial to us. Remember that. किसी ने सोचा, किसी ने बनाया, हमें तो पेड़ किसी ने उगाया और आम हमको मिल गए और छांव भी हमको मिल गई. So we are interconnected. We should study because there is a legacy of knowledge around us. Because other people have created that legacy and they have continued it. 2000 साल पहले इकारस नाम का आदमी था जिसने मोम के पंख बनाए और उड़ने की कोशिश की, पंख पिघल गए, इकारस मर गया. But it was an ambition that man can fly. उसको पता नहीं था कि कैसे फ्लाई करना है. उसने सोचा पंख बना के उड़ लूं. पक्षियों के जो होते हैं फेदर्स, उसने लिए, उसके पंख बनाए, मोम से चिपका दिए, मोम पिघल गया सूरज की गर्मी से, एक रस्ते के पड़ गया, मर गया, गिर के मर गया. लेकिन ambition didn't die. After so many years, in era of 1400 and 1500, Leonardo da Vinci has created design for the helicopter. Then there is one German scientist called Gustav and one Marathi scientist. Both have created design for the Viman because Pushpak Viman fantasy was there already. The story was there, but they didn't try.
Eventually, out of 6 persons who have made a design, Wright Brothers liner took off. Wright Brothers liner. After 1900 years of Icarus has died. 1900 years. But it was continuation saga. Everyone has added something into it. किसी ने कुछ डिजाइन ने चेंज किया, किसी ने पंख नए बनाए, किसी ने प्रोपेलर नया बनाया, किसी ने मशीन की डिजाइन नई बनाई. इवेंचुअली जो राइट ब्रदर्स ने उड़ाया वो विमान में हम नहीं बैठते. अभी जो फ्लाइट में बेचते हैं वो डिफरेंट डिजाइन का है. बोइंग और एयरबस बनाते हैं. तो डिजाइन चेंज होती है, लेकिन किसी के नॉलेज का अपग्रेडेशन हमें रेडीमेड मिलता है. We should study because someone else has created knowledge saga for us. We should study that because we can add and change something for the better. We should study because the world is an endless library and world is a gifted book. The world is a mystery story about to open up. And if we explore the world more and more, the world will open more colors to us, more experiences to us, more blessings of knowledge to us. पानी में जाओगे तो पानी का संसार मिलेगा, रेत में जाओगे तो रेत का मिलेगा, पहाड़ में जाओगे तो पहाड़ का मिलेगा. एक फूल खिलते हुए देखोगे तो उसका मिलेगा. एक मधुमक्खी का शहद कैसे इकट्ठा करती है वो देखोगे तो उसका मिलेगा. ये पूरी दुनिया एक बड़ी मिस्टीरियस वेब सीरीज है जिसके हर एक एपिसोड की हर एक सीजन में हमें देख लेना है. ऐसा मान के अगर पढ़ोगे लाइफ लॉन्ग यू कैन गेट ए स्टडी द अप्रोच फॉर द स्टडी. ऐसा नहीं कहता कि पढ़ना ही अप्रोच, सिर्फ किताब पढ़ना, लेकिन जीवन को पढ़ना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट. Yes, but it was a good question, I must say. I guess she was a teacher or student. Teacher, student. Wow, you can be a good teacher, I must say. The quality of question was about the person who can teach can ask such a question. हेलो सर. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैंने सब सब्जेक्ट में क्रैक कर दिया और एग्जाम में मैं उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ, तो ऐसा क्यों और वो मैं कैसे करूँ? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. आपके अंदर तो पढ़ा है लेकिन आप ऑन द स्पॉट वो निकाल नहीं पा रहे. जैसे मैंने पहले ही बता दिया उसकी पकड़ दो बेटा. वो तो सॉल्यूशन इसका जवाब तो बड़ा कॉमन है और बड़ा सिंपल और छोटा है. जिस चीज में आपको लगता है कि हम काम कम कर पा रहे हैं उस चीज में प्रैक्टिस ज्यादा करें. Kaya marupokani. ओके, फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा. और कोई खामी नहीं है, सिर्फ आत्मविश्वास कम हो रहा है. आत्मविश्वास बढ़ाने का कोई इंजेक्शन तो है नहीं, वैक्सीन तो है नहीं कोई. ओके, एक ही चीज है आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, जिस चीज का आपको डर लगता है उसका सामना करो, उसमें अपना काम बढ़ाओ. हम फिल्म देखने के लिए थिएटर में जाते हैं तो पहले के जमाने में तो लोग बड़ी बड़ी टॉर्च लेके बैठते थे और हमको सीट तक छोड़ के आते थे. अब नहीं आते. क्यों? हर एक के पास मोबाइल आ गया. अब टिकट भी नहीं देते. काफी सारे पीवीआर थिएटर में जाता हूँ, मोबाइल पे टिकट दिखा देते हो. मोबाइल में ही दे देते. आप बॉक्स ऑफिस में टिकट लो तो आपको बोलेंगे मोबाइल नंबर डालो, टिकट आपके मोबाइल में आ जाएगा. आप मोबाइल लेकर अंदर जाते हो और अंधेरा हो गया और फिल्म स्टार्ट हो गई तो आपके सीट पे जाने के लिए आप क्या करते हो? Torch on. Torch मोबाइल on. में टॉर्च करते हो ना. देखो कितने सारे लोगों ने बताया टॉर्च, सबने किया होगा. ओके, तो वो टॉर्च आप जब करते हो तो पूरा थिएटर झगमगाने लगता है. हर जगह पे प्रकाश मिल जाता है, नहीं मिलता ना. एक स्टेप आप चल पाओ और एक सीट देख पाओ, इतना प्रकाश है आपके मोबाइल. लेकिन एक स्टेप आगे जाओगे तो दूसरा स्टेप आएगा, उस पर आगे जाओगे तो तीसरा आएगा, उससे आगे जाओगे चौथा आएगा, उससे आगे जाओगे पांचवा आएगा और आपकी सीट भी आ जाएगी और मूवी भी देखेगा. मेरे दोस्त, यही आपको करना है. आपको लगता है कि पूरा थिएटर अगर लाइट वाला हो जाए न हो, कोई टेंशन मत लो. इतनी रोशनी तो परमात्मा ने हमारे अंदर डाली हुई है कि हम एक स्टेप आगे बढ़ सके. और एक बढ़ोगे तो दूसरा दिखाई देगा, दूसरा बढ़ोगे तो तीसरा दिखाई देगा. इवेंचुअली पहुंच जाओ. उसके लिए रोशनी की जरूरत नहीं है, चलने की जरूरत है. थैंक यू. यहाँ पे क्योंकि माइक वहां पे दिया हुआ है ना, तो आप ऐसा
ऐसा कीजिए यहाँ पे एक मिनट वेट कीजिए और मैं उनको बैठता हूँ। एक यहाँ पे भी क्वेश्चन था इनका और एक आपका। वांद्रो उन लोगों को जवाब कैसे दे जो हमें हमारे जैसे वो कंपेयर करते हैं किसके साथ या हमें ताने मारते हैं। गुड बहुत अच्छा, बहुत ऑनेस्ट सवाल है। बोलते नहीं तो बड़े लोगों को भी देती है, सही है, छोटे लोगों को भी देती है, बच्चों को देती है, ऐसा नहीं है। मम्मी पापा का तो और ज्यादा रहती है कि इसके ताने का जवाब कैसे दें। तो देखिए, कंपटीशन इज गुड बट कंपैरिजन इज नो गुड। सर मेरे एंगल कंपैरिजन से कोई मतलब निकलता नहीं। कंपटीशन ठीक है, आपको अच्छा बना है। ताने मार रहे हैं लोग कहते हैं कि बुरा आदमी है, तो सबसे पहले मैंने तो अपने घर के दरवाजे पे एक स्टिकर लगाया, जो कोई आए वो पट के चला गया। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग तो कहते रहते हैं फ्लॉप हो जाएगा। 6 महीने पहले ऐसे बैट्समैन में बात कर रहा हूँ, कैप्टन नहीं। ऐसे बैट्समैन लोग कहते थे कि विराट कोहली को तो निकाल देना चाहिए, अब तो वो रन नहीं बना रहा। ओके, फिर विराट कोहली ने इतने रन बनाए और पाकिस्तान के सामने मैच अकेले हाथों से जिता दिया, तो लोग कहने लगे कि विराट कोहली को तो रखना ही चाहिए और बाकी सबको निकाल देना चाहिए। तो आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो यही लोग वाहवाह करने लगेंगे, बुरा परफॉर्म करेंगे तो यही लोग ताने मारेंगे। तो लोगों का कोई इतना कोई है नहीं कोई कंफर्म कि यही अच्छा कहेंगे यही बुरा कहेंगे। वो तो जैसे रुख हवाओं का जिधर है उधर हम है, ऐसा है। तो आप इतना याद रखिए मेरे दोस्त, किसी के ताने का जवाब कैसे दिलाएं। मुझे भी लगा है मैं 2 साल तक घर में बैठा था, काफी सारी किताबें पढ़ी, किसी ने नहीं देखा। लोगों ने ये देखा कि एग्जाम क्यों नहीं दे रहा है, एग्जाम क्यों नहीं दे रहा। मैं कोर्ट में केस लड़ा बोर्ड के सामने, मेरे एग्जाम के पेपर के रिजल्ट के तौर पर, और फिर तो प्रिंसिपल बन गया, राइटर बन गया, स्पीकर बन गया और माध्यमिक शिक्षण बोर्ड के ही 10 कार्यक्रम कर दिया एज ए स्पीकर। पिछले साल उन्होंने मुझे बुलाया था कोरोना में बच्चों को कैसे वो आत्मविश्वास बढ़ाए उसका प्रोग्राम करने के लिए। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट क्या है, कैसे किया मैंने। आपने अगर चक दे इंडिया फिल्म देखी है तो उसमें वो कोच कबीर खान ने वो लड़कियों को एक बात कहता है, पहले अपनी गेम दूसरों से ऊंची करो, फिर अपनी आवाज दूसरों से ऊंची करो। किसी का ताने का जवाब किसी ने आपको निकम्मा बोल दिया फाइन। अब हम उसको तो गाली दी, वो तो वो भूल जाएंगे, दूसरे दिन वो भी भूल जाएगा, हम भी भूल जाएंगे। ये जवाब नहीं है। जवाब ये है कि उसने निकम्मा बोला, हमने सुना और हमने तय किया कि हम ऐसे बन के दिखाएंगे कि उसको अपने शब्द एक दिन वापस लेने पड़े। और आप कहीं पे पहुंच गए, किसी भी अचीवमेंट आपने हासिल की, पढ़ाई में की, कोई दूसरे करियर में की, कोई शौक के करियर में की, और अगर 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, 2 महीने के बाद वो इंसान आपको सामने दिखाई दे और आप मुस्कुराते हुए उसके सामने से चले जाए, इसको बोलते हैं तानों का जवाब। तानों का जवाब ताना नहीं है, तानों का जवाब है सक्सेस एंड अचीवमेंट। ये याद रखें। अवर हैप्पीनेस, एक सूत्र देता हूं, सब लोग याद रखिएगा, काम लगेगा पूरी लाइफ में। अवर हैप्पीनेस इज बिगेस्ट रिवेंज टू द नेगेटिव सोसाइटी। आप जितना खुश रहोगे वही बदला है। बदला लेने के लिए तलवार निकलकर नहीं उठानी। बदला कैसे लिया जाता है समाज के सामने? बदला ऐसे लिया जाता है कि आपकी खुशी देख के यूं ही चल जाए, यूं ही लाभ हो जाए। तो अवर हैप्पीनेस इज द बिगेस्ट रिवेंज टू द नेगेटिव सोसाइटी। यस, हाँ, मैंने इसीलिए बोला था ना कि इनका और एक इनका दोनों खड़े हैं। गुड आफ्टरनून सर, जी। माय नेम इज अनुराग फ्रॉम 12th साइंस इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट ऑफ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ टू कम आउट फ्रॉम द प्रेशर एंड स्ट्रेस ऑफ द एग्जाम। ओके, उसका तो सबसे पहले मैंने जवाब दे दिया। यहाँ पे जो शुरू किया और मैंने कहा कि कॉमन क्वेश्चन जो सबका होगा उसकी बारे में 5-10 मिनट बता देता हूँ। मेरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है जी कि
अगर मैं जब पढ़ने बैठता हूँ जब भी, तो स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो जाता है, मतलब उस डायरेक्शन में दिमाग चला जाता है, पढ़ाई में नहीं रहता। ये मैं बता, ये इंडिविजुअलिस्टिक में बताता हूँ क्यों। किसी मुझे भी स्ट्रेस लगता है। सपोज ये सुभाष भाई को स्ट्रेस लगता है कि भाई देखिए ये जय तो भाषण कर रहा है, उसकी फ्लाइट नहीं है, मेरी फ्लाइट। मैं फ्लाइट चुप जाऊंगा या नहीं चुप जाऊंगा, पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा, भावनगर पहुंचूंगा, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा। समझ, मैं आपको रियल एग्जांपल कह रहा हूँ क्योंकि वो तो हम छोड़ने के लिए थे एयरपोर्ट। एयरपोर्ट वाले ने बताया कि फ्लाइट 2 घंटे लेट है, तो यहाँ पे आ गए। ओके, तो उनको स्ट्रेस क्यों है? पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा, फ्लाइट उठ जाएगी, यहाँ ठहरना पड़ेगा, बस में जाना पड़ेगा, ट्रेन में जाना पड़ेगा, दूसरी फ्लाइट कल होगी, पूरी रात ठहरना पड़ेगा। आता है हमको स्ट्रेस तभी इंडिविजुअल आता है, मुझे भी आता है। सही कहता हूं कि मैं कोई स्ट्रेस फ्री कोई देवता हूं। कब आता है हमें स्ट्रेस? जब हमें भय लगता है परिणाम हमारी फेवर में नहीं हो, तभी स्ट्रेस आता है। लोगों को बहुत स्ट्रेस आते हैं। मैंने एक सर्वे पढ़ा था, यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में हुआ। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटियों के साथ, फिल्म स्टार्स, बॉक्सर्स, स्पोर्ट्स चैंपियंस, पॉलिटिशियंस, इंडस्ट्रियलिस्ट, लगभग 800 लोगों ने उसमें जवाब दिया था। और उनको पूछा गया कि ऐसे लोग जो सक्सेसफुल है, अचीवर्स, जिनका नाम इतिहास की तवारीख में दर्ज है, उन लोगों को पूछा गया कि आपको सबसे आपको फियर कब लगता है? पैसे है, नाम है, आपको फियर। 800 लोगों में से ऑलमोस्ट 640 लोगों ने क्या जवाब दिया मालूम है? जब प्यार हुआ था तो पूछे कैसे। इसमें इलन मस्क भी आ गए और स्टीव जॉब्स भी आ गए, इसमें बराक ओबामा भी आ गए। इससे बड़ा सर्वे था, बड़े बड़े लोगों ने जवाब दिए। जैसे मैंने कहा है, साइंटिस्ट भी है, स्पोर्ट्स पर्सन भी है, ओलंपिक के चैंपियंस है, तो अपने अपने फील्ड में तो मशहूर थे। लेकिन 800 में से 640 ने एक जवाब पे टिक किया कि जब कोई पसंद आ गया तो मन में फियर भी आ गया, ना कहीं वहां पे तो कुछ बड़ा अलर्ट रहना है, बराबर तो है नहीं, उसका हनर कर जाएंगे। तो प्यार से वैसे कोई चॉकलेट लेके जाएंगे, गुलाब लेके जाएंगे, क्या लेके जाएंगे। लेकिन 800 अचीवर्स में से 640 लोग ये कह रहे हैं कि हमें सर्च कब नहीं लगा कि बिजनेस में हो जाएगा, ये इलेक्शन हार जाएगा या गेम में मेडल नहीं मिलेगा। स्ट्रेस कब लगा कि ये ना कहेंगे तो हम कहां जाएंगे। ठीक है, उसमें से काफी सारे लोगों ने ये भी बताया कि किसी ने ना कह भी दी और वो दूसरे के साथ सेटल भी हो गए, और किसी ने हाँ कह तो उनके डिवोर्स भी हो गए। ये अमेरिका का मामला है, तो वहां पे तो ये चलता रहता है। ओके, तो बिल गेट्स ने अभी डिवोर्स ले लिए, इलन मस्क ने भी ले लिए, जो जितने अरबपति है, जेफ बेजोस, 3-4 लोगों ने तो डिवोर्स ले लिए, उसमें उसकी संपत्ति कम हो गई। और हमारे गौतम भाई से उनकी संपत्ति बढ़ गई क्योंकि उनके तो पूरी यूनाइटेड फैमिली है, मुकेश भाई और गौतम भाई। मैं तो ह्यूमर के लिए कह रहा हूँ, काफी सीरियस टॉक हमने सुन ली, थोड़ा हंसाया नहीं जाए। इंडिविजुअल स्ट्रेस का रीजन यही है कि हम सोचते हैं कि रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं हो। मुरारी बाबू ने एक बार मुझे कहा था, तो हम बात कर रहे थे कि भाई लोगों में कितना, मैंने पूछा कि आप इतना स्थिर कैसे रहते हैं। जैसे मुझे कोई फेसबुक पे कमेंट करता है तो मैं नीचे जवाब लिखता हूँ, आपको कभी किसी को जवाब नहीं देता। उनके बारे में काफी सारे लोग बोलते हैं, कहते हैं वो जवाब ही नहीं देते। दूसरे हमारे जैसे लोगों को कहते हैं कि आप भी बता दो, ओम विघ्नोराय नमः, ओम विघ्नोराय नमः, नया मंत्र है, उन्होंने कहा 21वीं का मंत्र है, इंग्लिश और संस्कृत का मिक्स। ओके, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ करके ही सुबह की शुरुआत करता हूँ, कथा की शुरुआत करता हूँ, दिन की शुरुआत करता हूँ। और हनुमान चालीसा में तो लिखा हुआ है, तुम रक्षक काहू को डरना, काहू को डरना, भगवान को ही सौंप दिया सब भार, हम क्यों डरे। जब हमारे साथ है रघुनाथ तो फिर किस बात की चिंता। सिंपल बात। ऐसा सोचोगे कि वो उसने सोचा है, अच्छा सोचो, कुछ होगा उसमें। अगर सुभाष भाई सोचेंगे कि फ्लाइट अगर मिस भी हो जाए तो कोई लेक्चर यहाँ पे शाम को रख दिया,
मेरे को स्ट्रेस है नहीं, मैं तो उनको मजाक के तौर पे ले रहा हूँ ऐसे दोस्त। यस जल्दी जल्दी पास कर बंद कर સર મારો ક્વેશ્ચન એ છે કે હું મારો કોન્ફિડન્સ એક્ઝામિનેશનમાં મજબૂત કેવી રીતે બનાવું? ओके, जैसा मैंने पहले ही बता दिया, તમારો જે પ્રશ્ન છે ને મેં હિન્દીમાં બતાવ્યો, તમે ગુજરાતીમાં બતાવ્યો। કોઈ પણ આત્મવિશ્વાસ જે છે, કોઈ પણ કોન્ફિડન્સ જે છે, એ કેવી રીતે મજબૂત થાય? પ્રેક્ટિસ જેમાં વધારે થાય એમાં મજબૂત થાય। મને તમે ગાડી ચલાવવાનું કહો તો મારે બીક લાગે, રોંગના આમથી આવશે, ડાબી બાજુથી આવશે, જમણી બાજુથી આવશે, કારણ કે હું વારંવાર ગાડી ન ચલાવું। પણ એ જ વસ્તુ મારા કરતા ઓછું ભણેલા, જેને બિલકુલ સ્ટેજ ઉપર ચડતા નથી આવડતું, જેને 5 પુસ્તકો નથી વાંચ્યા, એવા એક ડ્રાઈવરને હું ગાડી સોંપી તો ભાઈ આપણે પહોંચવાનું છો આ જગ્યાએ, એ બિલકુલ કોન્ફિડન્સથી ચલાવશે। એટલે કાંઈ એ જ વસ્તુને મને બીક લાગતી હતી, મને બીક નહીં લાગી। શું કામ? કારણ કે એને ભલે પુસ્તકો ન વાંચ્યા હોય, ભલે સ્ટેજ ઉપર ચડીને ભાષણ ન કર્યા હોય, પણ એને ગાડી ચલાવવાનું પ્રેક્ટિસ કરી લીધી છે। મેં નથી કરી, મને બીક લાગી। ખ્યાલ આવ્યો? જે વસ્તુ મેં રોટલીનું ઉદાહરણ આપ્યું, ચપાતી રોટલી, ગોળ રોટલી થાય, આપણે મમ્મીઓ ગોળ રોટલી કરતા કરતા સિરિયલ જોઈને ફોનમાં જવાબ આપ્યો, રોટલી ગોળ જ થાય, કોઈ ચોરસ નથી થાય, ત્રિકોણ નથી થાય, કારણ કે એમને એટલી પ્રેક્ટિસ પડી ગઈ છે રોટલીની કે એમને ટેન્શન નથી। ખ્યાલ આવ્યો? જે વસ્તુમાં તમે મેક્સિમમ એક્સપિરિયન્સ લો અને પ્રેક્ટિસ પાડો એમાં આત્મવિશ્વાસ મળે। એટલે મેં ટીપ પણ આપી કે જો તમને વાંચવામાં ધ્યાન ન રહેતું હોય, પેલા બેનના સવાલના જવાબમાં, તો એક રસ્તો એ છે કે વધારે લખતા રહો, 5 વાર લખો, 10 વાર લખો, 7 વાર લખો, કાયમ નહીં લખવું પડે। ચિંતા કરતા તમને એમ થાય હાય આખી જિંદગી લખો કેટલી જશે, બરાબર? એ થોડું ફોર્મેટિવ યર્સ કહેવાય। 2-3 વર્ષ તમે આવું કરશો, પછી ધીરે ધીરે તમારો બ્રેન ડેવલપ થઈ જશે, તમારું બ્રેન બનશે। સર મારો હજી એક સવાલ છે કે સમટાઈમ્સ શું થાય છે કે એક્ઝામ હોય છે ત્યારે ડર હોય છે કે પેપર હાર્ડ હશે તો મેં શું કરીશ, એ ટેન્શનને કારણે ક્યારેક માઇન્ડ બ્લેન્ક થઈ જાય, તો સર ત્યારે એ સિચ્યુએશનમાં શું કરવું? टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। પરિણામનો ડર આપણને સ્ટ્રેસ થઈ આવે છે। પેપર હાર્ડ હશે તો, આમ થશે તો, પેલા મેં હમણાં જવાબ ન દીધો, મેં પૂછ્યું ના પાડી દેશે તો, આ ડર ક્યાંથી આવે છે, સ્ટ્રેસ ક્યાંથી આવે છે? પરિણામ આપણી ફેવરમાં નથી, હાર્ડ અઘરું છે। હાર્ડ પેપર હશે બહુ સારું, ફિલ્ટર થઈ જશે, ઈઝી પેપર હશે તો બીજા કેટલાય લોકો આવી જશે ભારતમાં, હાર્ડ પેપર હોય તો ઉલટાના ઓછા લોકો પાસ થશે। આ વિચાર પોઝિટિવ કે જેટલું ઈઝી પેપર એટલી કોમ્પિટિશન વધારે, એડમિશન લેવા જશો બીજા 100 જણા ઉભા હશે, જેટલું હાર્ડ પેપર કોમ્પિટિશન ઓછી, ઘણા બધા ફેલ થઈ ગયા હશે, ઘણા બધા નહીં એવું હોય, બરાબર, તો બાકીના લોકો ઓછા હશે। તો હંમેશા પર્વતના શિખર ઉપર મોટી જગ્યા હોય, તળેટીમાં જ ભીડ હોય, તો હાર્ડ પેપર તો સારું, તમે શિખર ઉપર જવાનો પાસપોર્ટ છે। હું તો ભણતો ત્યારે એવું ઈચ્છતો કે પેપર હાર્ડ જ હોવું જોઈએ, હું ઘરે ભણું, આટલું બધું વાંચું, આટલું બધું મારી લેંગ્વેજ ને બધી તૈયારી હોય, અને પેપર ઈઝી નીકળે તો ગમે એ માણસ તમારે જેટલા માર્ક આવે। પેપર હાર્ડ હોય તો લોકોને ખબર પડે કે કયા કયા ટેલેન્ટ છે, એટલે જેટલા બેઠા છે બધા એટીટ્યુડ રાખો। હાર્ડ પેપર ઇઝ ગુડ ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ ગેટ અ ફિલ્ટર ઓફ અવર ટેલેન્ટ। છેલ્લો સવાલ આપણે લઈ લઈએ, ચાલો બસ।
હેલો સર, ગુડ મોર્નિંગ. યસ. સૌપ્રથમ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર અમને માર્ગદર્શન કરવા માટે. મારો સવાલ છે કે સર, જેમ તમે અમને આજે માર્ગદર્શન આપ્યું તો અમે ઘરે જશું, વ્યવસ્થિત પ્રેક્ટિસ કરશું, પેપર સોલ્વ કરશું. 1-2 દિવસ થશે, પણ જેમ ત્રીજો દિવસ આવશે, જે પહેલા દિવસનો ઉર્જા હશે એ ત્રીજા દિવસે નહીં હશે. તો પોતાની જાતે મોટિવેટ કરવા માટે શું કરવું જોઈએ? એક્સેપ્ટ. હવે દાખલા તરીકે આપણે આજે મેં નક્કી કર્યું કે આજે ધારી લીધું સરસ મજાનું જયસુખભાઈ ત્યાં કાર્યક્રમ કરી લીધો. હવે તો કાંઈ છે નહીં, ઘરે જવાનું છે, બરાબર. અહીંથી મારે કંઈક જ્યાં રૂમ હોય ત્યાં જવાનું છે, પછી ઘરેથી સુઈ જવાનું છે. એટલે નામું નથી શિયાળો કોણ ને હવે સરકાર કહે છે પાણીનો બચાવ કરો, બરાબર, સેવ વોટર. આપણે નામું જ નથી. પછી કાલ સવાર પડે આપણે એમ થાય ઓહો હજી શિયાળો ચાલુ જ છે, ક્યાં શિયાળો ક્યાં ધુમ્મસ, આપણે નામું જ નથી, બરાબર. પછી ત્રીજો દિવસથી સવાર આવે એટલે આપણે એમ થાય ઓહો હજી 2 દિવસ તને કંઈ ખાટું પડવું નથી, આજે કોણ ખાવા જાય, બરાબર. 3 દિવસથી પછી એમ કે ક્યાં જવાની જરૂરત છે, લોકો ફટાફટ નાયા કરે છે. આપણે નાયા વગર બેઠા તેમાં શું કે મળી ગયા. ચોથા દિવસે પછી 5મા દિવસે એવું થાય કે આપણી બાજુ કોઈ ધક્કા મારી ખાવા મોકલે, બરાબર. તો બીજું તો કાંઈ નથી, મોબાઈલ હરખો થાય નહીં, કારણ કે પરસેવો થઈ ગયો હોય, ચીકાશ આવી ગઈ હોય, મેળ આવી ગયો હોય, મોબાઈલ સ્ક્રોલ ન થાય એમ થતું. તો મિત્રો જેમ નાવું રોજ પડે, આ વાળ વધે તો ક્યારેક ક્યારેક કાપવા પડે, નખ વધે તો ક્યારેક ક્યારેક કાપવા પડે, બરાબર. સફાઈ કરવી પડે, ઘર ગમે તેટલું ઘર હોય ચોખ્ખું, ગમે એવું તમે નીટ એન્ડ ક્લીન કર્યું હોય, 2 દિવસ પછી પાછી ધૂળ થઈ જાય, પાછી સામાન્ય સાફ કરવું પડે, પાછું પોતું મારવું પડે. એમ મગજને પણ રોજ સ્નાન કરાવવું પડે અને રોજ પોતા મારવા પડે. આજે જય મસાવડાએ થોટ આપી દીધા, આજે જોર આવી ગયું, 2 દી લગી જોર વચ્ચે રાખ્યું, તો આજે મેં હમણાં નાહીને પણ છાતી બહાર નીકળું, ખુશ્બુનો ઢગલો આવતો હોય, એ 2 કલાક રહે, એનાથી વધારે રહે નહીં. બહુ સારા ક્વોલિટીનું પરફ્યુમને સાબુ હોય તો 8 કલાક રહે, એનાથી સારી ક્વોલિટીનું હોય તો સુઈ જાવ ત્યાં લગી રહે, બીજે દિવસે તો ન જ રહે, બરાબર. તો મારે જેમ રોજ નાહીને ખુશ્બુદાર થવું પડે, એમ દરેક વ્યક્તિએ સારા પોઝિટિવ મોટિવેટિંગ સ્ટડીના વિચારોમાં રોજ ધ્યાન રાખીને સ્નાન કરવું પડે. આ જો ભારતમાં પદ્ધતિ આવી છે, ખાલી ભારતમાં નથી, બધા ધર્મોમાં, ઇસ્લામમાં છે, ક્રિશ્ચિયનિટીમાં છે. શું જપ રિપીટ કરવાની વાત. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. માળા એમાંથી જ આવી ને, બરાબર. ઓમ નમો નારાયણ, ઓમ નમો નારાયણ, ઓમ નમો નારાયણ, ઓમ નમો નારાયણ. અરે આ તો બધા આજ કરવું એવું નથી કહેતો, પોતપોતાના જે આસ્થા હોય એમના, હિન્દુ મુસ્લિમ શીખ ઈસાઈ આપસ में सब भाई भाई, બરાબર, એવું કરું. પણ મહત્વની વાત આ છે કે દરેક ધર્મમાં કે પાઠ છે, કે પાઠ કરજો રિપીટમાં. હિન્દુમાં છે, મુસ્લિમમાં છે, શીખોમાં છે, ક્રિશ્ચિયનમાં છે. કારણ કે એ લોકોને ખબર હતી કે તમને થાય છે એવા સવાલ થશે કે આજે તો બહુ મજા આવી જીસસ ક્રાઇસ્ટ બેની વાતો કરવાની, પણ કાલે તો જીસસ હું કોઈ નહીં ભૂલી. આજે તો બહુ મજા આવી કૃષ્ણ સાથે વાત કરવાની, પણ કાલે તો કૃષ્ણએ શું જ્ઞાન કીધું ભૂલાઈ. તો એ ભૂલાઈ ન જાય એના માટે આ સિમ્પલ ફોર્મ્યુલા બધા આપી કે રોજ પાઠ કરાવો. આપણે આ જ કરવાનું છે, સારા વિચારોમાં, એનર્જેટિક વિચારોમાં અને સ્ટડીના એપ્રોચમાં રોજ પાઠ કરવાનો છે, જેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય સેલ્ફ મોટિવેશન. અમે બધા જે મોટિવેશન બીજા કહેતા હોય, અમને કોણ મોટિવેટ કરતું છે? હાલો ઉઠવાનું છે, હાલો પ્રોગ્રામમાં જવાનું છે, હાલો સ્ટેજ ઉપર ઉભારીને બોલવાનું છે. પછી જાતને જ કમાન્ડ આપવો પડે. એક તબક્કા પછી ધારો કે સચિન તેંડુલકરના લેવલનો ક્રિકેટર હોય કે ધોનીના લેવલનો ક્રિકેટર હોય, તો જે લેવલનો ક્રિકેટર હોય એ લેવલના ક્રિકેટરને કોઈ બાજુમાં બેસીને કહેતો નહીં કે ભાઈ હવે હરખું રમો ને, તો સચિનને કોણ કહેવાય? પણ સચિન જ પોતાની જાતને કમાન્ડ આપતો. આજે બરાબર નથી થયું, તમે જોયું હશે ઘણા ક્રિકેટરો આમ બેટ પછાડી નીકળે, સરખામણી ન થાય. એ શું છે? પોતાની જાતને આપેલો કમાન્ડ છે કે કેમ આવું આપણે લઈ આવું થોડું રમાય. કોઈને ટીકા નથી કરતું, પણ પોતે જ પોતાની જાતની ટીકા કરે છે. આ શીખવાનું છે. હવે
સવાલ એટલા માટે લઈ નહીં શકાય, સુભાષભાઈને પ્લેન પકડવાનું છે અને અમારે મૂકવા જવાનું છે, પણ એક વાત બહુ ચોક્કસ છે, તમે એકાદ વર્ષ